Good morning, everyone. What had we discussed in the previous class? We discussed capital market, right? Yes, sir. And we discussed capital market is mainly of two types, primary market and secondary market. Secondary. Primary market means when securities are issued, new securities are issued by companies to the investors. And secondary market comprises of various stock exchanges, where investors can buy and sell securities with each other or to each other through stock exchange. Now we are going to discuss this stock exchange or secondary market in some detail. First of all, meaning of stock exchange. What is a stock exchange? It is a market where, So, yes, bolo. where shares exchange. Yes, very good. Where there is trading in stock. Stock means securities. Securities means shares, debentures, bonds, etc. Stock exchanges deal in securities like shares, debentures, or bonds issued by companies or corporations in private as well as public sector, and bonds issued by central and state governments also. Now, dealing in securities is regulated by an act. The name of the act is the Securities Contracts Regulations Act 1956. What is the name? The Security Contract Act. Yes. According to this act, the definition of stock exchange is that a stock exchange is a body of individuals, whether incorporated or not, means whether registered or unregistered, constituted for the purpose of assisting means helping, regulating, and controlling business of buying, selling, and dealing in securities. And let me clarify once again, when we are saying securities, securities include shares, debentures, or bonds. Clear? Yes, sir. Now, functions or role or importance of stock exchange. First point is safety of transactions. Stock exchange ensures that the dealings, the buying selling of securities is safe and dealings are fair. Means there is no cheating or there is no fraud. That is taken care of by the stock exchange. बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं कंट्री में, ठीक है. दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत सारी हैं. इन सबको मिलाकर हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट. तो इन सब स्टॉक एक्सचेंजेस में प्रोसीजर क्या होता है? जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, तो पब्लिक को शेयर्स इशू करने से पहले कंपनी को वो शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाने होते हैं, क्योंकि किसी स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स की ट्रेडिंग पॉसिबल होगी तभी लोग उन शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे. So the company approaches any stock exchange. It may approach one of the stock exchange or multiple stock exchanges for the listing of its shares. तो स्टॉक एक्सचेंजेस कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, इस सब को स्टडी करती हैं. उसके बेसिस पे डिसाइड करती हैं कि उसके शेयर्स को लिस्ट करना है या नहीं. अगर स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स लिस्ट हो गए तो इन्वेस्टर्स को थोड़ी एश्योरेंस मिल जाती है कि हाँ, this company is financially sound because stock exchange has verified their financial position and profitability. उसके बाद लिस्टिंग मिलने के बाद फिर उस कंपनी के शेयर्स
उस स्टॉक एक्सचेंज पर या उन स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड किए जा सकते हैं, बाय एंड सेल किए जा सकते हैं। ठीक है, सो दिस मैकेनिज्म प्रोवाइड्स अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ सेफ्टी टू द इन्वेस्टर्स। क्लियर? Yes, sir. सेकेंड पॉइंट इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि अगर स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं होती तो फिर शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में जो पैसा इन्वेस्ट हो गया वो बहुत लंबे टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है इन्वेस्टर्स का। बट with the presence of stock exchanges, the investors can sell their shares or debentures or bonds anytime and convert them into cash whenever they want. So it provides liquidity and marketability to these securities. Clear? Yes, sir. Third is pricing of securities. Price quotations, again we had discussed, price is determined in the stock exchange through the forces of demand and supply of securities. And supply. और जो भी प्राइस डिटरमिन होता है वो लगातार स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होता है, और साथ के साथ उसको न्यूज चैनल्स वाले, न्यूज पेपर वाले फॉलो कर रहे होते हैं, और वो आगे अपने न्यूज चैनल्स में या न्यूज पेपर्स में भी दिखाते हैं, तो इन्वेस्टर्स को पता रहता है कि कौन सी सिक्योरिटीज का क्या प्राइस चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज contributes to economic growth. It is said that stock exchange is a barometer of economy. मतलब स्टॉक एक्सचेंज से आइडिया लग जाता है कि इकोनॉमी कैसी जा रही है। क्यों? अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज पे इंडिया की मोस्ट जो बिजी स्टॉक एक्सचेंज है, मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, और जो इंडिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। ठीक है, सो इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन केस ऑफ इंडिया, अगर उसमें ज्यादातर सिक्योरिटीज के प्राइसेस ऑन एन एवरेज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड कब बढ़ेगी? जब इन्वेस्टर्स कंपनीज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज्यादा पैसा कब इन्वेस्ट करेंगे? जब वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। एंड वाइस वर्सा, इफ द प्राइसेस ऑफ majority of shares are falling, then why are they falling? Because demand is less, supply is more of their securities. Why will that happen? Most probably there can be other factors also, but the main factor is performance of the companies, the profitability of the companies. If that is going down, means economic growth is negative. So by looking at the prices of securities in the stock exchange, we can get an idea about the position of economy of that particular country. Clear? Next point is spreading of equity culture. Because the shares or debentures can be easily sold and converted back into cash through stock exchanges, people readily invest in equity shares and debentures and bonds. अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होती तो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में तो एज वी हैड डिस्कस्ड ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग उनके पैसे ब्लॉक हो गए थे। बट thanks to the stock exchanges, they can convert their shares back into cash anytime by selling those shares. Clear? Yes, sir. Next point is providing scope for speculation. Speculation का क्या meaning होता है? Any idea? No. Buying and selling sir. anything with the purpose of making a profit. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग
घर खरीदते हैं किस लिए? क्योंकि उन्हें रहने के लिए घर चाहिए, उनके पास नहीं है, तो वो हुए जेन्युइन इन्वेस्टर्स हाउसिंग में। लेकिन कुछ लोगों के पास अपना घर होते हुए भी वो और प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? कि कुछ टाइम बाद जब प्राइस बढ़ जाएगा तो बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। दैट इज स्पेक्यूलेशन। सिमिलरली शेयर्स के केस में भी कुछ जेन्युइन इन्वेस्टर होते हैं जो इसलिए किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं कि कंपनी से प्रॉफिट में से उन्हें शेयर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर होते हैं जो किसी कंपनी के शेयर्स इसलिए खरीदते हैं कि जब प्राइस बढ़ जाएगा तो हायर प्राइस पे दे विल सेल दोस शेयर्स एंड मेक अ गेन। तो इसे कहते हैं स्पेक्यूलेशन। इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्यूलेशन क्लियर? Yes, sir. तो स्टॉक एक्सचेंज स्पेक्यूलेशन का भी स्कोप प्रोवाइड करती है कि जो इन्वेस्टर स्पेक्यूलेट करना चाहते हैं, उसके थ्रू कुछ कमाई करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। Although, in my opinion, this speculation should not be allowed. It is undesirable. Why? क्योंकि स्पेक्यूलेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा प्राइस पे बाद में बेचने के लिए बेच के गेन कमाना चाहते हैं, तो उनके लगातार खरीदने से प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़ जाते हैं। और जो जेन्युइन इन्वेस्टर है उसको उसके लिए चीज महंगी होती चली जाती है। अगर हम प्रॉपर्टी का भी एग्जांपल लें, शेयर्स या प्रॉपर्टी किसी भी चीज का एग्जांपल लें, किसी भी कमोडिटी का एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हाउसिंग। अगर कुछ लोग हाउसेज इसलिए खरीदते जा रहे हैं कि वो बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, ऑल्दो उनके पास अपना घर है, इससे क्या होता है, उनके खरीदने से लगातार डिमांड बढ़ने से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो जो जेन्युइन इन्वेस्टर हैं जिनके पास अपना घर नहीं है रहने के लिए, उनकी रीच से बाहर होता जाता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है हाउस खरीदना, क्योंकि प्राइसेस इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है स्पेक्यूलेशन का। दूसरा नुकसान ये है कि स्पेक्यूलेशन इज लाइक गैम्बलिंग। प्राइसेस बढ़ सकते हैं तो कम भी तो हो सकते हैं। अगर और कम हो गए तो फिर नुकसान हो जाएगा जिन्होंने ये सोच के खरीदा था कि बढ़ेंगे प्राइस। तो कई लोग स्पेक्यूलेशन के चक्कर में अपनी हार्ड अर्न्ड सेविंग्स को डुबो भी देते हैं, लूज भी कर देते हैं स्टॉक मार्केट में या और तरह की स्पेक्यूलेशन में। और सबसे वर्स्ट तो होती है फूड आइटम्स में स्पेक्यूलेशन, जिससे कि फूड आइटम्स के भी प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं और कॉमन पर्सन की रीच से बाहर होते जाते हैं। उसको रोकने का तरीका क्या हो सकता है? अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो कम से कम 1 साल का होल्डिंग पीरियड रख देना चाहिए कि कोई चीज आपने खरीदी है तो 1 साल से पहले उसे बेच नहीं सकते आप। तो इससे स्पेक्यूलेशन काफी हद तक कम हो जाएगी। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ स्पेक्यूलेटर्स। आपने अगर स्टॉक एक्सचेंज के कभी फोटो देखी हो या न्यूज में देखा हो, स्टॉक एक्सचेंज को देखा है कभी? स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को? No, sir. उसके बाहर एक स्टैचू बना हुआ है बुल का, बैल का। क्यों? एक स्टॉक एक्सचेंज का एक एनिमल से क्या रिलेशन है? वो सिंबॉलिक है। किस चीज का सिंबॉलिक है? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेक्यूलेटर्स इन अ स्टॉक एक्सचेंज। Two most common types of speculators are called bull and bear. बुल या तेजी वाला, ये स्पेक्यूलेटर क्या करते हैं? लगातार शेयर्स खरीदते जाते हैं कुछ कंपनीज के। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है उनका प्राइस बढ़ेगा। और जब प्राइस बढ़ता है तो, और इनके खरीदने से भी डिमांड बढ़ रही है तो उससे भी थोड़ा प्राइस बढ़ता है। एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टू अ सर्टेन लेवल, वो शेयर्स को बेच के प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब इन्हें बुल क्यों कहा जाता है? पहले हिंदी में तो बड़ा सिंपल है, तेजी वाला, क्योंकि वो प्राइसेस में तेजी लाते हैं, इंक्रीज लाते हैं, डिमांड बढ़ा के। बुल क्यों कहते हैं? बुल जो एनिमल है वो जब किसी पर अटैक करता है, द बुल लिफ्ट्स द विक्टिम ऑन इट्स हॉर्न्स
and throws the victim in the air. हवा में उछाल देता है अपने विक्टिम को बुल। तो इसलिए ये लोग प्राइजेस को उछालते हैं ऊपर, तो इसलिए इन्हें सिंबॉलिकली बुल कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। बेयर्स होते हैं इसके ऑपोजिट, जो लगातार सेल करते रहते हैं जो शेयर्स को, और फिर जब प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं, सपोज 100 रुपए का शेयर उन्होंने बेचने, 100 रुपए के प्राइस पे बेचने शुरू किए, प्राइस आते आते जब 90 पे आया दोबारा खरीद लिए, तो जो 100 में बेचा था वो 90 में खरीदा, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दीज आर कॉल्ड बेयर्स। ठीक है, सो बुल्स आर ऑप्टिमिस्ट्स, बेयर्स आर पेसिमिस्ट्स। बेयर्स को कहते हैं मंदी वाला, जो प्राइस को गिराते हैं। सो बुल इज एन ऑप्टिमिस्ट who buys securities in expectation of rise in prices, whereas a bear is pessimist who sells securities in expectation of fall in price. और बेयर क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि बेयर जो एनिमल है, जब वो अटैक करता है किसी पे तो अपने विक्टिम को नीचे दबाता है, और ये स्पेक्युलेटर्स प्राइजेस को नीचे गिराते हैं, इसलिए। क्लियर? Yes, sir. Now some stock market terms. First is stock market index. एक टर्म शायद आपने सुनी होगी कई बार न्यूज में या अदरवाइज, BSE सेंसेक्स। सुना है? Yes, sir. क्या होता है ये, पता है कुछ? No, sir. ये तो इन्वेस्टमेंट पापा देखते हैं ना, कभी कभी स्टॉक मार्केट तब देखा था। ये एक इंडेक्स नंबर है। आपने इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे पहले, कभी पढ़े? Yes, sir. क्या होते हैं इंडेक्स नंबर? एक तरह की एवरेज होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ एन एवरेज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एज आई टोल्ड यू, इज द ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 30 मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, उनका एक इंडेक्स नंबर है, उनका एक तरह से एक एवरेज है, वेटेड एवरेज है प्राइस का, विच इज कॉल्ड BSE सेंसेक्स। तो BSE सेंसेक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ज्यादातर शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और अगर BSE सेंसेक्स फॉल हो रहा है, सेंसेक्स इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंसिटिव इंडेक्स, क्योंकि ये एक इंडेक्स नंबर है, और अगर ये फॉल हो रहा है तो इसका मतलब ज्यादातर शेयर्स के प्राइसेस फॉल हो रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसी की तरह से हर स्टॉक एक्सचेंज का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स नंबर है, उसका नाम है निफ्टी। निफ्टी नाम क्यों है? क्योंकि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 50 मोस्ट ट्रेडेड सिक्योरिटीज का इंडेक्स नंबर है। तो 50 से इफ्टी ले लिया और नेशनल का एन ले लिया, उसको नाम दे दिया निफ्टी। So similarly, every stock exchange has an index of prices of shares which are most traded on that stock exchange. Clear? Yes, sir. Next term is odd lot trading. अगर कोई 100 से कम शेयर्स की ट्रेड बाइंग या सेलिंग कर रहा है तो उसे कहते हैं odd lot trading. Next term है penny stocks. Securities having very less value on stock exchange, generally bought by bulls for speculation, are called penny stocks. Clear? Yes, sir. Now next heading is trading and settlement procedure in a stock exchange. अगर आपको किसी कंपनी की सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स परचेज करने हैं या सेल करने हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्टर्स डायरेक्टली एक दूसरे को सिक्योरिटीज बाय या सेल नहीं कर सकते। दे हैव टू डू द ट्रेडिंग थ्रू अ broker registered with that stock exchange.
So first of all, you have to select and approach a broker. ठीक है? Trading of securities can only be done through SEBI registered brokers who are members of a stock exchange. Brokers may be individuals, partnership firms, or corporate bodies. A broker client agreement is signed and the client has to fill a client registration form containing name, PAN क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यू करता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है? ज्यादातर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में अपना पैन नंबर बताना जरूरी होता है. इसके थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे नजर रखता है, ट्रैक रखते हैं वो. एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डीमैट अकाउंट डिटेल्स. डीमैट क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में. डीमैट अकाउंट डिटेल्स एटसेट्रा. The broker then opens a trading account in the name of the investor. Trading in securities is done through an online electronic trading system. Is this clear? Yes, sir. Okay. Next step is opening Demat account. Now, in my opinion, opening Demat account should be the first step. Why am I saying so? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा कि जब ब्रोकर के पास जाते हैं तो ब्रोकर को अपना डीमैट अकाउंट की डिटेल्स देनी होती हैं. तो अगर डीमैट अकाउंट पहले से खुला होगा तभी तो डिटेल देंगे ना. तो ये स्टेप एक्चुअली पहले होता है डीमैट अकाउंट ओपन करना. लेकिन क्योंकि बुक में ऐसा दे रखा है तो एग्जामिनेशन पर्पज से आपने इसी ऑर्डर में लिखना है. सेकंड नंबर पे डीमैट. क्लियर? Yes, sir. So opening डीमैट account, Demat account is also called beneficial owner account with a depository. Demat account क्या होता है, अब इसका मतलब समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं. जैसे बैंक अकाउंट होता है उसमें हम पैसे डिपॉजिट करके रखते हैं. किसी को भी पेमेंट करनी है तो चेक के थ्रू या ऑनलाइन हम बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर देते हैं. हमारे अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. या किसी ने हमें पैसे देने होते हैं वो अपने अकाउंट से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, ऑनलाइन भी, चेक के थ्रू भी, कैश डिपॉजिट के थ्रू भी, है ना. सिमिलरली शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह के लिए एक अकाउंट होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिसे कहते हैं डीमैट अकाउंट. जब इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है अपना डीमैट अकाउंट नंबर वो एप्लीकेशन फॉर्म में भरता है. कंपनी उसके डीमैट अकाउंट में उतने अमाउंट के शेयर्स ट्रांसफर कर देती है जितने उसे अलॉट करती है. ठीक है. अब अगर उसने और किसी को उनमें से कुछ शेयर्स बेचने हैं तो वो ब्रोकर को अपना डीमैट अकाउंट नंबर बताएगा और ब्रोकर के थ्रू जब डील हो जाएगी तो उसके अकाउंट से बायर के डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे उतने अमाउंट के, शेयर्स या डिबेंचर्स व्हाटएवर. ठीक है. इसी तरह से जब वो शेयर्स खरीदेगा किसी से या डिबेंचर्स खरीदेगा तो उसके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स या डिबेंचर्स का अमाउंट ऐड हो जाएगा. तो जैसे पैसों के लिए बैंक अकाउंट होता है वैसे ही फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के लिए डीमैट अकाउंट होता है. क्लियर? Yes, sir. डीमैट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं? ये एजेंट्स होते हैं. जैसे आपने नोटिस किया होगा जो जितने भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं मेनली 3-4 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके होते हैं. एक रुपए है, एक वीजा है, एक मास्टर कार्ड है, एक अमेरिकन एक्सप्रेस है ना. Yes, sir. लेकिन अलग अलग बैंक्स उनके कार्ड्स इशू करते हैं. तो मतलब क्या हुआ? बैंक कार्ड्स इशू कर रहा है लेकिन सारा डेटा कौन मेंटेन कर रहा है? अगर वीजा कार्ड है तो वीजा वाले में उसका सारा डेटा अपने सर्वर्स पे मेंटेन कर रहे हैं.
मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड वाले, रुपए कार्ड है तो रुपए वाले सारा उसका डेटा इन्वेस्टर्स का अपने सर्वर्स पे मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से डीमैट अकाउंट के लिए दो मेन डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में, एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। लेकिन बहुत से बैंक्स या ब्रोकर्स वगैरह हैं जो इनके एजेंट की तरह डीमैट अकाउंट्स खोलते हैं, डेटा सारा मेंटेन करेंगे एनएसडीएल या सीडीएसएल जिसका भी डीमैट अकाउंट होगा। ठीक है, लेकिन एज देयर एजेंट्स, banks, stockbrokers, financial institutions, and non-banking financial companies can open demat accounts of people. तो इनको कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इन बैंक्स को, स्टॉक ब्रोकर्स को, जहां जाके इन्वेस्टर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। क्लियर? यस सर। सो Demat account refers to an account with a depository participant to trade in listed securities in electronic form. Depository interacts with the investor through depository participants who maintain securities account balances and intimate the investors the status of their holding from time to time. जब भी आपके डीमैट अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी डिटेल इमीडिएटली ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू इन्वेस्टर को दे दी जाती है। सेकंड पॉइंट क्लियर है? यस सर। थर्ड पॉइंट इज प्लेसिंग द ऑर्डर। द ऑर्डर, बाइंग या सेलिंग ऑर्डर जो भी है, द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर आइदर पर्सनली और थ्रू फोन, email, etc. The instructions should specify the securities to be bought or sold, the price range within which the order is to be executed. The broker then issues an order confirmation slip to the investor. Only the securities of listed companies can be traded on a stock exchange. यहाँ तक clear? Yes sir. Then matching the order. Broker को order मिल गया. Now the broker matches the order with the best price available in the trading software of stock exchange. अब वो अपने कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उस स्टॉक एक्सचेंज का, उसके थ्रू चेक करता है कि बेस्ट प्राइस क्या अवेलेबल है उस डील को करने के लिए। अगर आप खरीदना चाहते हो, आपने एक प्राइस रेंज दी है, तो वो देखेगा उस प्राइस रेंज में लोएस्ट प्राइस पे कोई बेचने को तैयार है, कोई उस प्राइस रेंज में कोई बेच रहा है, तो वो उससे कांटेक्ट कर लेगा। अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो जो प्राइस रेंज आपने दी है उस प्राइस रेंज में अगर कोई खरीदने में इंटरेस्टेड है वो उसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है, उसके ब्रोकर को। देन नेक्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। अगर उसे सूटेबल डील मिल जाती है, सूटेबल मैच मिल जाता है ब्रोकर को, तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्वेस्टर, द ब्रोकर बाइज और सेल्स सिक्योरिटीज। द ब्रोकर देन साइंस एंड इश्यूज अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्ट्रैक्ट नोट। Within 24 hours of issuing trade confirmation slip, the broker issues a contract note containing the order code number, name, price of securities, name of the parties मतलब buyer and seller, and brokerage charges. Equity spot markets follow a T+2 rolling settlement. इसका मतलब है the trade gets settled within 2 days. अब वो सेटलमेंट कैसे होती है? पहला स्टेप होता है सेटलमेंट का पे इन डे। द बायर एंड सेलर डिलीवर द अमाउंट एंड सिक्योरिटीज। जो बायर है वो अमाउंट डिलीवर कर देगा, जो सेलर है वो सिक्योरिटीज डिलीवर कर देगा। किसको? अपने अपने ब्रोकर्स को। विद इन 2 days, and the brokers deliver the same to the stock exchange. Then next is payout day.
ऑन T+2 डे, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई थी, डील हुई थी, उससे तीसरे दिन, इसका मतलब 2 दिन बाद, स्टॉक एक्सचेंज delivers the amount to the seller broker and securities to the buyer's broker. And third step in settlement is delivery of securities or amount. अब brokers अपने अपने investors को, clients को सिक्योरिटीज और अमाउंट डिलीवर कर देते हैं. जो बायर का ब्रोकर है वो अपने क्लाइंट को सिक्योरिटीज डिलीवर कर देगा, उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा. और जो सेलर का ब्रोकर है वो अपने क्लाइंट के बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर देगा विद इन 24 आवर्स. क्लियर? नाउ जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस है कंट्री में, उन सबके बिजनेस को कंट्रोल और रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. It was set up to protect the interests of investors in April 1988 under the administrative control of Finance Ministry. आपने 11th में पढ़ा होगा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पढ़ा था? यस सर. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी. तो ये सेटअप हुआ था पहले एज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है, अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री. लेटर इट बिकेम अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कब बनता है? जब उसके लिए कोई लॉ एक्ट स्पेशली पास होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में या असेंबली में. क्यों एस्टेब्लिश हुआ था सेबी? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज from malpractices like price rigging, unofficial premium on issue, violations of rules and regulations on part of the brokers, merchant bankers, investment consultants, etc. तो ब्रीफ में कहें तो इन्वेस्टर को बचाने के लिए, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. दूसरा मेन पर्पस है सेबी का टू प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. सिक्योरिटीज मार्केट को प्रोमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए. और तीसरा मेन रीजन है उसे सेटअप करने का, टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. क्लियर? अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी, ये सारे के सारे इन्हीं 3 पॉइंट्स के आसपास घूमते रहेंगे जो रीजंस हैं. लेकिन आपको लिखने उन्हीं वर्ड्स में पढ़ेंगे जैसे बुक में जिस हेडिंग के अंडर दिए हुए हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी पढ़ो चिन्मय. टू प्रमोट फेयर डीलिंग बाय द कंपनीज इश्यूज सिक्योरिटीज, टू प्रोवाइड a degree of protection to investors and safeguard their interests, to enforce a code of conduct for intermediaries like brokers, underwriters, writers, etc., to regulate the functioning of various stock exchange in the country. Any doubt in any of these points, anyone? No sir. No. अब next heading पढ़ो, purpose and role of SEBI. अब ये दिया हुआ है बुक में 3 पॉइंट ऑफ व्यू से. इशुअर्स के पॉइंट ऑफ, इशुअर मतलब कंपनीज. तो इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू इशुअर्स वेयर दे कैन कंफर्टेबली रेज रिक्वायर्ड फंड्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. दूसरा है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. इट एम्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय providing them adequate, accurate, authentic information from time to time. तीसरा इंटरमीडियरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से. इंटरमीडियरीज कौन है? ब्रोकर्स, एजेंट्स वगैरह, सब ब्रोकर्स. टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर एंड अप्रोप्रिएट एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंटरमीडियरीज टू एनेबल देम टू रेंडर बेस्ट सर्विसेज टू बोथ इशुअर्स एंड इन्वेस्टर्स. क्लियर? यस सर. फंक्शंस ऑफ सेबी. सेबी के फंक्शंस को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो उसके 3 रीजंस थे सेटअप करने के, उनके बेसिस पे. ठीक है.
पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, दूसरा है रेगुलेटरी फंक्शंस, तीसरा है डेवलपमेंटल फंक्शंस। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या क्या है सेबी के, पढ़ो चिन्मय। To check fraudulent and unfair trade practices relating to security market. To attempt to check insider trading in security. Undertaking steps for investor protection. Promotion of fair practices and code of conduct in security market. यस, कोई फ्रॉड ना हो, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। कोई डाउट किसी पॉइंट में? No, sir. इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? सर वो अंदर ही अंदर जब ट्रेड। कोई कंपनी का एम्प्लॉय आउटसाइडर्स को पहले से ही बता देता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कंपनी के अकाउंट्स पब्लिश होने से पहले ही, तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो आउटसाइडर्स कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो ये बाकी इन्वेस्टर के साथ फेयर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो सबके पास नहीं थी। इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, और ये इलीगल होती है। तो ये चेक करना सेबी का काम है कि ऐसा ना हो। ठीक है, रेगुलेटरी और डेवलपमेंटल फंक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। we'll stop over here for today. Any doubt, anyone? No, sir. Okay, thank you. Thank